everybody, welcome back. This is CA Rishabh Baid signing in. तो फाइनली ICAI ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। उन्होंने इसमें बताया है कि अगर आपको मई 2025 में एग्जाम लिखना है, if you are willing to write examination CA final exam in May 2025, then you have to comply with these particular requirements. मतलब इन रिक्वायरमेंट के साथ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, तब ही आप मई 2025 के अंदर एग्जाम लिख सकते हो। इसमें उन्होंने काफी सारी चीजें, फॉर एग्जांपल दे हैव स्पोकन अबाउट आर्टिकलशिप से रिलेटेड उन्होंने कुछ बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि आप फाइनल रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपको कैसे चेक करना है कि आप रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो, वो पूरा इस प्रोसेस इसके अंदर समझाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, very important, they have also clarified with respect to applicability of SPOM, which is basically your self-paced online module. If you are somebody who is writing examination for May 2025, then this video is going to be very important for you. So please do watch this video till the end, ताकि कोई भी important आप बात इसमें भूल ना जाओ। Our main focus would be with respect to checking the applicability of SPOM, कि SPOM के बारे में उन्होंने क्या requirement बताया है। So in this particular video, we will highly focus onto this particular aspect. Okay, so now without wasting much of time, let us begin. So as you can see here, this is the requirement for applying for May 2025 examination. This was released yesterday. That means basically on 14th of January 2025. Now before filing the examination, please check the following. आपको यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, ये आप कंडीशंस एक बार चेक कर लीजिएगा. We will not go, क्योंकि ये एकदम plain English में लिखा हुआ है. Anybody can understand it properly. ठीक है? You have to read it very carefully. Articleship training से related some points they have discussed about. Now let us move on to the most important aspect of this particular notification, which is basically self-paced online module. इसमें डिपार्टमेंट क्या बोलता है, हमारा जो ICAI डिपार्टमेंट वो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स हु वर एडमिटेड टू द फाइनल एग्जामिनेशन टिल नवंबर 2023, मतलब a person who has been admitted, मतलब who was eligible to write examination in November 2023, चाहे आपने लिखा हो चाहे ना लिखा हो, अगर आपको एडमिट किया गया था, एडमिट मतलब you were eligible for November 2023 examination, then in such a case appearing for self-paced online module set C and set D shall be exempt. मतलब the students who have admitted to the final examination till November 2023 are exempt from appearing in self-paced online module set C and set D. Now many of you will ask me, how did you know that? So I spoke to ICAI helpline and they told me that this means this only, कि अगर आपको admit किया गया है, admit means you were allowed to sit for November 2023 examination, irrespective of the fact कि आप चाहे exam लिखे हो चाहे ना लिखे हो, तो उस केस के अंदर आपको set C और set D exempt रहेगा. And it is mandatory for you guys to clear set A and set B before applying for the membership. मतलब आपको membership अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, membership अप्लाई करने से पहले set A और B को set A and B को कंप्लीट करना पड़ेगा मैंडेटरीली. और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कि मतलब कौन से सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कौन सा मॉड्यूल एप्लीकेबल होने वाला है. तो अगर आपने नवंबर 23 का एग्जाम दिया था और आप एक भी ग्रुप पास नहीं कर पाए, तो आपको सेट A एंड सेट B till November 23 but could not pass either of the groups, तो सेट A और सेट B आपको क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है, पास सेकंड ग्रुप till November 23 but couldn't pass वन ग्रुप, सेकंड ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप नहीं हुआ तो आपको खाली सेट A लिखना है. फर्स्ट ग्रुप हो गया और सेकंड ग्रुप नहीं हुआ तो आपको खाली सेट B लिखना है. उसके बाद में एग्जाम्पशन सिक्योर्ड इन पेपर नंबर 5 इन एनी अटेम्प्ट, मतलब मई 2022 से लेकर के अगर नवंबर 2023 तक अगर आपने कोई भी अटेम्प्ट के अंदर मई 2022 से लेकर के नवंबर 2023 तक अगर आपने इन मई 2022, नवंबर 2022, मई 2023 और नवंबर 2023 मतलब 4 अटेम्प्ट्स में से अगर कोई भी अटेम्प्ट के अंदर अगर आपने पेपर नंबर 5 विच इज बेसिकली कॉस्टिंग के अंदर अगर आपने एग्जाम्पशन लिया था इन चारों में से, तो आपको खाली सेट A ही लगेगा, सेट B आपको देने का जरूरत नहीं है. एग्जाम्पशन सिक्योर्ड इन पेपर नंबर 4, मतलब उन 4 अटेम्प्ट में से अगर किसी भी एक अटेम्प्ट के अंदर अगर आपने एग्जाम्पशन सिक्योर किया है, मतलब आपने सिक्योर किया था एग्जाम्पशन इन एनी अटेम्प्ट इन लॉ पेपर नंबर 4 विच इज बेसिकली कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ जो उस टाइम पे हुआ करता था, तो आपको सिर्फ खाली सेट B ही एप्लीकेबल होगा. एग्जाम्पशन सिक्योर्ड इन पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 5 इन एनी ऑफ द अटेम्प्ट्स, अगर पेपर 4 पेपर 5 में दोनों के अंदर आपको एग्जाम्पशन मिला है कोई भी अटेम्प्ट के अंदर मई 2022 से लेकर के नवंबर 2023 के अटेम्प्ट के बीच में, तो आपको सारे के सारे मॉड्यूल एग्जाम हो जाएंगे, आपको एक भी मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं रहेगी. सो दिस इज बेसिकली फॉर द वंस हु आर एलिजिबल टू राइट नवंबर 2023 एग्जामिनेशन. नाउ पॉइंट नंबर बी टॉक्स अबाउट स्टूडेंट्स अदर देन हु आर कवर्ड अंडर पॉइंट A above, मतलब नवंबर 23 वालों को छोड़ करके
the person who were admitted to final examination of May 2024. आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, admitted to the final examination of May 2024, मतलब you are eligible to write May 2024 examination. You are exempt from appearing in self-paced online module Set C and Set D. This is what this notification says. However, it is mandatory for such students to qualify Set A and Set B before applying for the membership. मतलब इन स्टूडेंट्स के लिए A और B को करना कंपलसरी होगा, और कब करना है आपको, मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. नाउ स्टूडेंट्स अदर देन दोस कवर्ड अंडर पॉइंट A and B अबव, मतलब नवंबर 2023 क्लैरिफाई कर दिया, मई 2024 को क्लैरिफाई कर दिया, अभी आ रहा है नवंबर 2024. नाउ अदर देन द वंस कवर्ड अंडर A and B अबव who were admitted to the final examination of November 2024, मतलब नवंबर 2024 के फाइनल एग्जाम में आप एडमिट थे, are required to mandatorily qualify A, B, C and or D as applicable on or before 10 अप्रैल 2025. तो मतलब if you are somebody who is going to write May 2025 का एग्जाम, then in such a case अगर आप नवंबर 2024 के लिए ही एलिजिबल थे, उससे पहले के अटेम्प्ट में एलिजिबल नहीं थे, ठीक है, तो in such a case आपको A, B, C या फिर डी, ए बी तो कंपलसरी हो गया, सी और डी एज एप्लीकेबल, मतलब डिपेंड करता है कि आपको सी एप्लीकेबल है या फिर डी एप्लीकेबल है, वो आपको चेक करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस टेबल. और भी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने बताया था कि अगर ए और बी पे आपको मैंडेटरी हो गया, सी और डी के अंदर या तो दोनों एप्लीकेबल हो सकते हैं या फिर एक एग्जाम होगा, एक एप्लीकेबल होगा. जैसा भी आपका सिनारियो रहेगा उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, 10 अप्रैल 2025 से पहले आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स को क्लियर करना पड़ेगा, तब ही जाकर के आप मई 2024 एग्जाम के 2025 के एग्जाम के अंदर बैठ सकते हो. अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ यू. देखो, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. इफ यू हैव एनी अदर व्यूज प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि क्या पता आपका भी कोई व्यू अलग निकले. हालांकि मेरे को एक पॉइंट पे जहां पे डाउट था कि ये एडमिटेड वाला, कि एडमिटेड का मतलब क्या हुआ, दिस आई वेंट एंड दिस आई कॉल्ड टू ICAI हेल्पलाइन एंड आई क्लैरिफाइड दिस. लेकिन और भी कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि कोई क्लैरिफिकेशन में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि दूसरों को भी वो हेल्प हो जाए. ठीक है. Now intermediate candidates who had cleared both the groups of intermediate examination, अब ये इंटरमीडिएट वालों के लिए आ गया कि इंटरमीडिएट वालों के लिए क्या क्या सिनारियो होने वाला है. ठीक है, तो आप इंटरमीडिएट वाले तो आप एक बार देख लेना कि आपको कैसे, इसके अंदर वीडियो के अंदर बहुत लंबा वीडियो जाएगा फालतू. आई डोंट वांट यू गाइस टू वेस्ट सो मच ऑफ टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट स्टिल जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको बताने की कोशिश की है. इंटरमीडिएट वालों के लिए यहाँ पे आप देख लेना, अगर आपने 6 पेपर क्लियर किए इंटरमीडिएट लेवल में, तो ABCD चारों आपको क्या होंगे, आपको मैंडेटरी लिखने पड़ेंगे. अगर 7 पेपर हुए हैं तो A, B और C और D में से कोई भी आप एक कर लेना. ठीक है. उसके बाद में अगर आपने पेपर नंबर 8 है, 8 पेपर्स अगर 8 तो क्लियर किए हैं, तो आपको सिर्फ खाली सेट A और B ही एप्लीकेबल होगा, C और D आपके लिए एग्जाम हो जाएगा. तो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू SPOM एप्लीकेबिलिटी. अब यहाँ पे ICAI ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी देके रखा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अगर डाउट हो तो आप ICAI को बताओ कि सर मेरा ये सिनारियो, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सिनारियोज आर बीइंग क्रिएटेड. मेरे को प्रीवियस वीडियोस के अंदर इतने कमेंट्स आए, उसके अलावा मेरे को पर्सनली भी टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू इतनी सारी क्वेरीज आ रही है कि हाउ टू, मतलब इतने सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं कि इवन आई एम नॉट एबल टू थिंक कि मतलब किस हिसाब से मैं उनको आंसर दूं. तो मैं उनको बस फाइनली ये बोलता हूँ कि भाई मैं नहीं बता सकता इसमें, क्योंकि आई कांट गिव यू गारंटी कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है. तो आप ICAI की हेल्पलाइन पे जाके आप उनसे बात कीजिए, ICAI कॉल सेंटर पे आप कॉल कीजिए, 9975 का जो नंबर है वहां पे आप कॉल कीजिए. उसके अलावा अगर आपको मई 2024 स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इस हेल्पलाइन पे आप मेल डालिए कि सर मेरा ये वाला सिनारियो है, और आप मेरे को बताइए कि मेरे को कौन कौन से सेट एप्लीकेबल होंगे. एंड ICAI इज आल्सो प्रोवाइडिंग रेस्पॉन्सेज. मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनकी ऐसी सिचुएशन है, तो उनको रिसीव हुआ रिस्पॉन्स इंस्टेंटली. तो आप भी फटाफट से कर लीजिए ताकि आपको भी क्लैरिटी आ जाए, क्लैरिटी ऑफ थॉट आए कि आपको कैसे करना है. इसके अलावा अगर सेट ए कंप्लीट करना है तो आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट जिससे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट सेट ए को क्लियर किया है. बी के लिए आई डोंट हैव एनीथिंग, सी के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन डी के लिए भी रिसेंटली मैंने अपडेट किया है प्लेलिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम. उसको जाके देखो, कंप्लीट कर दो, एग्जाम लिख लो, फटाफट से पास होकर के मेन पेपर्स के ऊपर फोकस कर लो. सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय एंड. इफ यू हैव एनी अदर स्पेसिफिक क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. थैंक्स अ लॉट.